Welcome. So here we are again seeing the weekly outlook as we have doing practice since last many weeks that I am providing you the weekly updates in the market. Uh, the market sentiments are really bad since last 2 weeks, as we can see. There are multiple uh, suggestions or guesses people are doing and discussing a lot regarding the global sentiments also. Now that North Korea, something news are coming floating around, then China news are going on. US recessions is there, so there are n number of negative sentiments are there, and all newses are floating. Have a lot of food to discuss around this news, right? So, if I focus on the level, so I'm getting few key points. So I will discuss that in this video, and I will show you the one more good method to analyze the sectors of the market. So that also we will discuss today. It will give you a good perspective. Trust me, this all I am providing the free of cost. If you studied with this way, then you will be very proficient in the swing trading. So how to identify trend, how to identify the trade, which sector we need to look for. That all information I am providing you, like many things I am providing you out of the cost, like free of the cost. So trust me, if you follow this, you will definitely get a good perspective for the market. So yes, weekly view, the negatives are still there, right? This candle showing itself the selling pressure for this week, and all this happens around this the top resistance line. On Monday, we might open one more gap down, right? So what next now? So any bounce here onwards will be converted into selling for a time being, as per my current as a daily time frame market is a sell on rise market. So there are three important levels which we need to understand, because if I calculate a Fibonacci retracement from this all range, then I will get few key levels. ठीक है, so वो level में भी आपको discuss करने वाला हूँ. First level is this level. I will exactly mark. Mm, yes, this is a price level. The first price is this 16,957. This will be our first support. Like 17,000 will be the key support of the market, as I discussed last time also. Then the middle of this range will be 16,650, and third support is 16,300 and 16,300, right? So these are the important key levels as per Fibonacci. If these three levels are getting hold, okay, getting if these three levels get defended, then we might see any time reversal from this level. Correct. So for me, I will not buy right now, as I am discussing this last week. Do not buy fresh, do not open fresh position right now. Let the market settle down. थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दो. ये तीन लेवल जो मैंने डिस्कस किया है, ये लेवल पे ही आपको बाय इनिशिएट करना है. बिकॉज क्या होगा यहाँ पे, जब आप एक डिस्क्रीट बाइंग करोगे यहाँ पे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी एक रिस्क के आसपास होगा. यहाँ पे अगर करोगे तो रिस्क थोड़ी बड़ी हो जाएगी, राइट? So wait for the opportunity. The round number is first round number is 17,000. Second is 16,650 and 16,300. These three levels are important for the market, and I am discussing this is a broader view. क्योंकि हर एक वीक में कोई एक्टिविटी नहीं होती. मेरे पास कोई नहीं कुछ नहीं होता. हर एक वीक आके कुछ आपको डेली के कुछ लेवल बताने से उसमें कोई पॉइंट नहीं होता. एज आई एम नॉट डूइंग एनी डे ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड. तो वो सारी छोटी मोटी नॉइज से भरी लेवल डिस्कस करने में कोई कोई मतलब ही नहीं होता. उससे आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे. इसलिए वीकली टाइम फ्रेम हमेशा देखा करो, ताकि आपको एक ब्रॉडर मार्केट का एक पर्सपेक्टिव मिले, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्विंग ट्रेडर. डेली नॉइज से अच्छा कि आप ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा देखिए, ब्रॉडर टाइमलाइंस को स्टडी करें, राइट? तो ये निफ्टी के लिए था. आज भी मैं कोई ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक नहीं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये वीक में भी कुछ सेलिंग ही हो रहा है. तो कुछ पॉइंट नहीं है डिस्कस करने के लिए. वी विल वेट फॉर निफ्टी टू कम एट दिस लेवल, राइट? सो व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, ये लेवल पे आपको बाइंग करनी है. तो जो मैंने कहा था कि मैं आज को और एक की पॉइंट आई नीड टू डिस्कस विथ यू, विच विल वेरी इफेक्टिव और वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर ट्रेडिंग, दैट वी विल सी टुडे. ठीक है.
यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस इज अ सेंसेक्स, लाइक सेंसेक्स 30 बीएससी सेंसेक्स का एक चार्ट है। आई एम नॉट टेकिंग निफ्टी 50 टुडे, बिकॉज निफ्टी 50 में खाली 50 कंपनीज आएंगी। आई एम स्टडिंग हियर द ब्रॉडर मार्केट, एक्चुअली सेंसेक्स को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। एंड वो स्टडी के लिए मैं कंपेयर करूंगा सेक्टर्स वाइज। एक ब्रॉडर मार्केट को अगर मैं किसी सेक्टर से कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेंगे लीडिंग सेक्टर एंड मुझे मिलेंगे लैगिंग सेक्टर्स। इसका क्या फायदा होगा, अगर ब्रॉडर मार्केट से ऊपर कोई सेक्टर लीड कर रहा है तो मुझे fact- आसानी हो रहा है, तो उसके अंदर जो कोई स्टॉक्स होंगे उसे अगर कोई डिक्लाइन मिलता है, उसमें अगर मुझे कोई ब्रेकआउट मिलता है, तो दैट विल बी इजी टू फिल्टर आउट द स्टॉक्स आउट ऑफ द 2000 स्टॉक। इट विल बी वेरी इजी टू यू टू फिल्टर आउट, राइट। अगर कोई सेक्टर बहुत लैग कर रहा है मार्केट को, ब्रॉडर मार्केट को, इट मीन्स इट इज अ वीक सेक्टर, और मुझे वीक सेक्टर में काम करने में कोई मतलब नहीं है। सिंपल। क्योंकि क्या होगा इससे, वीक सेक्टर मार्केट से क्या होगा, मतलब एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मार्केट निफ्टी आज गैप अप ओपन हो रहा है और निफ्टी ने ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक है, निफ्टी इज ट्रेंड अराउंड 5% 6% अपसाइड निफ्टी जा रहा है, ठीक है। अगर आपके स्विंग ट्रेडिंग में लैगिंग करने वाले कोई स्टॉक्स अगर हो, तो वो कितने बढ़ेंगे, 1% 2%, राइट। आपको उसका एज नहीं मिलेगा। ये तो हो गई जब निफ्टी बढ़ फॉलिंग लाइक 3%, तो ये जो वीक सेक्टर्स है उसमें और गिरावट गहरा है। Like you will get a fall of 10% 15% also at some times. Why? Because you are in the wrong sector. आप क्या होता है, लाइक हमें कोई एक ब्रेकआउट चार्ट मिलता है, या हम कोई स्कैनिंग क्रिएट करते हैं तो उसमें से हमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं, राइट। बट आपका ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि मुझे ये स्टॉक मेरे स्कैनिंग में आया है, बट ये कौन से सेक्टर में है। इज दैट सेक्टर लीडिंग टू द मार्केट, इज दैट सेक्टर अच्छे पोजीशन में है, या इट इज लाइक इन एडवांस विद द मार्केट, मार्केट के साथ है, मार्केट के ऊपर है ये सेक्टर। इफ दैट सेक्टर इज अबाव द मार्केट, ग्लोबल मार्केट लाइक या इंडियन मार्केट, देन इट इज अ वेरी गुड टू ट्रेड, आपके चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमें कोई मार्केट में नहीं, इट्स ऑल अबाउट लाइक अ गेसिंग, राइट। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट गेसिंग। आपको प्रेडिक्शन करना है मार्केट या कि क्या होने वाला है। तो इट जस्ट प्रोबेबिलिटी, आपको आपकी एज आपको कंफर्म, स्टॉप लॉस तो है ही, राइट। आपको खाली प्रोबेबिलिटी में आपकी काम करना है, और इतना ही काम करना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी 60% 70% होनी चाहिए। अगर आप 60-70% में 1:2 से भी काम करोगे, तो भी आपका एट द एंड ऑफ द ईयर आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। एंड आप बचोगे कि बुरे सेक्टर्स में काम करने से या बुरे शेयर्स में काम करने से आप बच जाओ, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कौन से सेक्टर्स फिलहाल लीड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स मार्केट को लैग कर रहे हैं। उसके लिए मैंने अभी एक 1 ईयर की टाइम फ्रेम ली है। आप टाइम फ्रेम एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल आई एम फॉर द रेफरेंस पर्पज आई एम शोइंग यू द 1 ईयर, लास्ट सितंबर से लेके ये सितंबर तक मैं आपको एक टाइमलाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेक्टर ऑन है दैट इज द निफ्टी आईटी सेक्टर, ठीक है। निफ्टी आईटी सेक्टर ने लास्ट ईयर एक यहाँ पे, यू सी दिस, यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया। और उसके बाद आपको पता ही है, आप कोई भी चार्ट खोल के देखो कि आईटी सेक्टर कितना अच्छा बूम कर रहा था। और अगर आपको कोई बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी थी, तो यहाँ पे मार्च में जाके देखो कि आईटी सेक्टर अगर कुछ डिक्लाइन आया है क्या, यस आया होगा। एंड इट गिव्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन, जहां जहां डिक्लाइन आ रहा है आईटी सेक्टर में, वहां पे एक अच्छा बाउंस बैक मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो अपने मार्केट से ज्यादा ऊपर चला गया था। जो मैंने 200 डे मूविंग एवरेज का भी आपको एक बताया था कि एनी 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 थिंग्स विच गोज अबाउ द लाइक 30% 20% अबाउ द मार्केट, ठीक है। तो ऐसे टाइम में वो एक उसका मीन रिवर्जन होता है, वो अपने ब्रॉडर मार्केट को कैच कर लेती है। तो यहाँ ये सेक्टर में भी ऐसे ही हुआ, इट ऑलमोस्ट गेन 50% हायर देन द एक्चुअल मार्केट, ब्रॉडर मार्केट, ठीक है। एक ही सेक्टर एकदम सडनली 50% राइस में चला गया था। तो अब वो रेक्टिफाई हो चुका है, इट इज राइट नाउ अलाइन विद द मार्केट। एंड एक्चुअली इट्स नॉट अलाइन, इट इज लैगिंग नाउ, ठीक है। तो अब मैं वेट करूंगा आईटी की पोजीशन, जब आईटी फिर से यहाँ से मार्केट को वीकली बेसिस पे आउट परफॉर्म करना चालू कर देगा आईटी सेक्टर, दैट टाइम आई विल ओपन माई पोजिशन। एंड फॉर स्पेसिफिक आई विल फाइंड अ स्विंग हाई ऑफ दिस रेंज ऑल्सो। यहाँ पे स्विंग हाई मुझे ये नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है, ठीक है।
तो ये स्विंग हाई मुझे जब क्रॉस होगा, मार्केट करेगा, दैट टाइम आई विल बी कंफर्म दैट ये आउट परफॉर्म करने लगा है अब ब्रॉडर मार्केट को। ये हो गया निफ्टी आईटी का, ठीक है। सो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एंड आई विल गो टू निफ्टी फार्मा। लुक एट फार्मा। फार्मा इज लैगिंग अ लॉट टू द ब्रॉडर मार्केट। ये है ही नहीं ब्रॉडर मार्केट के साथ, चल ही नहीं रहा है, ठीक है। जो कुछ चलना था उसका वो प्री कोरोना के और कोरोना के फेज में चल लिया, अब वो ब्रॉडर मार्केट को बहुत लैग कर रहा है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फार्मा स्टॉक्स। आप फार्मा स्टॉक्स कोई भी जाके खुल के देखो, कोई ट्रेंड नहीं है उसमें। वाई? बिकॉज देर इज अ नो पॉइंट। कोई भी अगर राइज आ रहा है तो ये सेल ही हो रहा है मार्केट में। लुक एट दिस, बिकॉज इट इज नॉट विद द मार्केट, ठीक है। तो ये कोई स्विंग अगर क्रॉस होते हैं तो देखा जाएगा, बट अभी फॉर मी कोई राइज आएगा तो भी मैं फार्मा में स्टॉक ट्रेड नहीं करने वाला, सिंपल, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक इज लीडिंग सिंस सितंबर, एज आईटी भी लीड कर रहा था, निफ्टी बैंक भी सरप्राइजिंगली ब्रॉडर मार्केट को लीड कर रहा है। जो कुछ गिरावट आती है उसमें मार्केट भी गिर रहा है, एंड अगर बाउंस आ रहा है, चल रहा है। एंड थैंक्स पीएसयू सेक्टर बैंक ऑल्सो। सो बैंक्स में अगर कोई गिरावट आपको मिलती है टुवर्ड 70% या कुछ 60% के आसपास, ठीक। तो 82 मतलब ये 20% की कोई गिरावट मिलती है अगर बैंक, टू ऐड बैंकिंग स्टॉक, ठीक है। एंड दिस इज नॉट एनी रिकमेंडेशन टू यू, दिस इज जस्ट स्टडी आई एम एक्सप्लेन यू, एज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, सो आई एम जस्ट suggesting you the my study, how I approach the trades, so that it will be very useful to you also. Nifty metal also, right? Nifty metal also leading very nicely to the market. So, अभी भी निफ्टी मेटल में अच्छी जान बनी हुई है। लाइक मैंने मोदीसन मेटल भी डिस्कस किया था, एक टाटा स्टील का भी एक डिस्कशन था। बहुत सारे मेटल स्टॉक भी अच्छे पोजीशन में है। एक अच्छी गिरावट आई थी कुछ वीक्स पहले, जस्ट जस्ट फॉर ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था मार्केट से, उसको कोप अप करने के लिए यहाँ से एक अच्छी गिरावट आई, ये ब्रॉडर मार्केट से अलाइन हो गया यहाँ पे, और एक हमें फिर से एक अप मूव यहाँ से मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी मेटल। देन निफ्टी रियलिटी। रियलिटी सेक्टर भी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आया था, उसके बाद ये एक थोड़ा सा एक अच्छा पोजीशन पे है अभी, तो देखते हैं क्या होता है इसको। तो रियलिटी सेक्टर के स्टॉक भी अच्छे चल रहे हैं। देन इट कम्स टू निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी मार्केट के नीचे ही चल रहा है, ठीक है। वाई? बिकॉज मार्केट जब ऊपर जाता है तो एफएमसीजी जो होते हैं डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट अब जब नीचे आएगा तो एक तो कुछ तो होगा कि ये क्रॉस डाउन मारेगा यहाँ से, और एक यहाँ पे एक निफ्टी एफएमसीजी का एक हमें एक सेफर जोन के लिए ट्रेड मिल सकते हैं। तो की वॉच ऑन एफएमसीजी सेक्टर कुछ वीक्स के लिए, मुझे आई विल वेट फॉर इट। एंड निफ्टी एफएमसीजी में वैसे आईटीसी में अच्छा रिटर्न दिया है, तो आईटीसी ही था जो एफएमसीजी को इतने ऊपर लेके आया। आईटीसी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। ये दो स्टॉक ने ही एक एफएमसीजी इंडेक्स को ऊपर लाया है। सो आई एम वेटिंग फॉर कि यहाँ पे कुछ एक्शन हो, ठीक है। उसके बाद आता है देन नेक्स्ट, आई विल डिस्कस द सेक्टर्स ऑल्सो। यहाँ पे आई विल डिस्कस द निफ्टी मिड कैप 150। तो इफ यू सी, यहाँ तक क्या हो रहा था, मार्केट के साथ अलाइन हो रहा था। जो लार्ज कैप बढ़ रहे थे वही स्पीड में निफ्टी मिड कैप भी बढ़ रहा था। उसके बाद में वो स्लो हो गया, अपना लार्ज जो मार्केट है वो स्लो हो गया, बट स्पेसिफिकली मिड कैप सेक्टर जो थे वो। सो मिड कैप में क्वालिटी स्टॉक में हर वीक बता रहा हूँ कि अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको कुछ, देन आई कांट डिस्प्ले एवरीथिंग राइट ऑन फ्री, तो आपको कैसे लीडिंग स्टॉक ढूंढे मार्केट के। सेक्टर ढूंढना इजी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसे राइट टाइम को स्पॉट करे, सो दैट इफ यू लर्न देन योर ट्रेडिंग विल बी सो इजी एंड पेनलेस, ठीक है। तो वो भी आप एक बार सोचिए इसके बारे में भी। देन आता है निफ्टी स्मॉल कैप 250। ये भी मार्केट को लीड कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आपको स्मॉल कैप में भी और मिड कैप में भी क्वालिटी स्टॉक मिलते हैं चार्ट वाइज, तो गो फॉर इट, ठीक है। ब्रॉडर मार्केट से ये सेक्टर्स अच्छे। ये था आज का मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको देने के लिए कि आप ऐसे स्टडी करोगे, वीकेंड को ही आपको बैठना है, दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम, राइट।
अगर डेली करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आवरली करना है तो यू कैन डू। अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो लास्ट 4-6 दिन में कोई सेक्टर चल रहा है तो वो भी आप वैसे कर सकते हो। कि अगर 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में मैं करता हूँ तो मुझे 5 मिनट के टाइम के कोई लीडर सेक्टर मिल जाएंगे, तो उसमें से मुझे स्टॉक में ढूंढना पड़ेगा मेरे को, राइट। आई विल फाइंड स्टॉक इन ऑन दिस लेवल कि 5 मिनट्स में कौन से लीड कर रहे हैं, तो फटाफट मेरा स्कैनिंग इजी हो जाएगा उससे। तो मुझे मेरा प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करने का ये एक वे है, राइट। So yes, just give me, just comment on the video, guys. No one just comment or just likes also. The likes are very few. So I'm not getting any motivation actually. No one just type it's a good video, right? I know this content is very, very, very informative. So I know the quality of it, but I need some motivation from you guys. At least post one comment. It won't take much time, right? एनीवेज, हैव अ नाइस वीकेंड, और नवरात्रि आ रही है उसकी भी शुभकामनाएं आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए आइडियाज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।